भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, जहां हर रंग, हर सुर, हर धड़कन में बसती है संस्कृति, जहां हर राग में इतिहास गूंजता है, हर नृत्य में दर्शन झलकता है और विरासत हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती है। IGNCA पेश करता है संस्कृति यात्रा, भारत की मूर्त और अमूर्त धरोहरों का अद्भुत सफर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं हमारा कल्चरल शो संस्कृति यात्रा। भारत में हमेशा से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की रिच हेरिटेज रही है। क्लासिकल म्यूजिक से लेकर फोक म्यूजिक, लाइट म्यूजिक से लेकर टेम्पल ट्रेडिशन, हर किसी के लिए अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। आज की यात्रा में कुछ लेसर नोन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की खोज में हम चल रहे हैं केरल की ओर, जहां के मंदिरों में बजने वाले ट्रेडिशनल टेम्पल इंस्ट्रूमेंट्स सिर्फ म्यूजिक ही नहीं बल्कि फेथ और रिचुअल्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। केरल की गुरुवायूर टेम्पल ट्रेडिशन में कुछ डिफाइंड रिचुअल्स के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स बजाए जाते हैं, जो कि वर्षों से चले आ रहे ट्रेडिशन का पार्ट है। इनमें पंच वाद्य यानी 5 इंस्ट्रूमेंट्स की स्पेशल इंपॉर्टेंस है। तो आइए इनके बारे में और ज्यादा जानते हैं आज की यात्रा के पहले सेगमेंट विशेष में, और देखते हैं फिल्म देव वाद्यांगल टेम्पल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ केरला के कुछ चुनिंदा अंश। The holy song from the Shang awakens God. When God wakes up, the village too comes to life. God, the creator and preserver, materializes from the celestial world into the physical world. The soul of Indian culture lies in the harmony of humanity and spirituality. In this concept, each village temple becomes an abode of goodness and prosperity. The Sopana is a form of classical music in Kerala. Its origin and evolution are not yet clearly known. Scholars believe that the Sopana derives its name from the position from which it is recited. A group of temple servants and artists have traditionally recited the Sopana with the Idakya as accompaniment before the deity, standing in front of the Sopana, which are the steps leading to the Sanctum Sanctorum. The rhythmic structure of the Sopana corresponds to the gradual progress of its rhythmic beat. The Sopana is recited from when the shrine is closed for puja to the time when it is opened for the main worship. This practice is traditionally known as Kottipadi Seva. The maram is a highly ritualistic instrument used as an accompaniment for pani. It is not merely the playing of an instrument, but is considered as powerful as the chanting of a mantra. The instruments accompanying the maram during pani are chengila and shankha. Kunyikuttan is a master craftsman in the making of chenda. His son Balakrishnan is also an adept in the field.
Kurel is a traditional temple instrument belonging to the category of wind instruments. The word kurel means a tube. The Kurum Kurel is a double-reeded pipe having 12 to 18 inches length. It consists of a conical wooden pipe with a bell-shaped attachment made of metal at the bottom. The Idakya is regarded as God's most favorite musical instrument. In it unite the intrinsic spirit of the Vedas and the art of music. It is also an hourglass-shaped drum, but not as long as a timila. The shell is hollowed out of a single block of jackwood or red sandalwood. The Idakya is suspended from the left shoulder by means of a cotton cord. The Idakya should not be placed on the floor, but should be suspended near the sopana. This is in keeping with its sacred nature. The 4 sticks or jiva kol on the drum are supposed to represent the 4 Vedas, and the 64 balls attached to the instrument represent the 64 arts. The Panchavadyam is a very popular traditional group performance of Kerala. The very name Panchavadyam indicates the number of instruments used. Pancha means 5. The 5 instruments here are the Timila, the Shuddha Maddalam, the Idakya, the Komba, and the Ilathalam. As a prelude, the Shankar is blown thrice. Though it is a group performance, under the present system, it also gives scope for individual improvisation, especially for the Timila Maddalam and the Idakya performance. The present Panchavadyam is a developed form of earlier Anushtana Panchavadyam. A performance may last from 1 to 4 hours, depending upon the availability of time. Panchavadyam is becoming more popular on account of the tonal effect produced by it. Over the years, the performance with these temple instruments has become team-oriented.
अभी आपने देखा कि जितनी डाइवर्सिटी भारत के कल्चर में है उतनी ही डाइवर्सिटी हमारे म्यूजिक में भी है। शायद यही ट्रेडिशंस की कॉन्टिन्यूटी हमें एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाती है। और अब ट्रेडिशंस की कॉन्टिन्यूटी को आगे कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर। भारत के सभी राज्यों के फोक ट्रेडिशंस रिच और डाइवर्स हैं और इनमें से एक फोक ट्रेडिशन को हम आज देखेंगे लोक रंग के माध्यम से। भारत के उत्तर पूर्व का दिल कहे जाने वाला असम अपनी संस्कृति में कई फोक ट्रेडिशंस यानी लोक परंपराओं को समेटे हुए है और इन्हीं में से एक है असम की टी कम्युनिटी और कई ट्राइबल ग्रुप्स के बीच बहुत लोकप्रिय झूमुर गीत। आइए देखते हैं इस फोक फॉर्म को देश विदेश में प्रसिद्धि दिलाने वाले रंजीत गोगोई और उनके समूह द्वारा सुरीला झूमुर गीत।
असम के संगीत में बसी वहां की मिट्टी की सौंधी महक लेकर आगे चलते हैं अपने अगले सेगमेंट माटी सुगंध की ओर, जहां भारत सरकार का मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एक मेगा प्रोजेक्ट चला रहा है, मेरा गांव मेरी धरोहर, जिसका फोकस है भारत के गांव की कल्चरल मैपिंग करना ताकि हमारी विरासत को डॉक्यूमेंट किया जा सके। इसी कड़ी में आज हम चलेंगे पश्चिम बंगाल के हुगली डिस्ट्रिक्ट में स्थित कमरपुकुर गांव की ओर। ग्रेट इंडियन थिंकर सेंट रामकृष्ण परमहंस का जन्म इसी गांव में हुआ था। गांव में रामकृष्ण मिशन द्वारा ऑपरेटेड श्री रामकृष्ण मठ है। गांव का रासलीला उत्सव यहां का विशेष त्योहार है। डोकरा मेटल आर्ट और बास्केटरी यहां की हैंडीक्राफ्ट्स हैं। तो आइए चलते हैं कमरपुकुर गांव की ओर। कमरपुकुर एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर, जिसके कण कण में भक्ति और आध्यात्म की ज्योति जलती है। यहाँ मुख्य तौर पर बंगाली व हिंदी भाषा बोली जाती है। गांव में रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित एक विद्यालय है। कमरपुकुर में बिजली, पानी, सड़कें व दैनिक उपयोग के सभी संसाधन उपलब्ध हैं। लोगों की सेवा हेतु यहाँ एक सरकारी चिकित्सालय भी है। ग्रामीण रोजगार मुख्यतः कृषि पर आधारित है। खेती के अलावा ग्रामीण अन्य छोटे मोटे व्यवसायों व रोजगारों से आजीविका चलाते हैं। कमरपुकुर में हथकरघा द्वारा वस्त्रों की बुनाई भी की जाती है। गांव के कुछ कलाकार बांस द्वारा टोकरी बनाने में निपुण हैं। यहाँ के पुरुष शर्ट, पैंट, धोती, लुंगी व कुर्ता पहनते हैं और महिलाएं साड़ी व सलवार कमीज पहनती हैं और नक्शवी, शाखापोला, सिंदूर व बिंदी आदि से श्रृंगार करती हैं। कमरपुकुर में गोजा, सीताभोग, निमकी, जलेबी, संदेश आदि व्यंजन पसंद किए जाते हैं। कमरपुकुर के मंदिर आस्था स्तंभ है, जिनमें एक प्राचीन शिव मंदिर अपना विशेष स्थान रखता है। यहाँ भगवान शिव मूर्ति स्वरूप में विराजमान है। गांव में विष्णु मंदिर के साथ साथ दुर्गा मंदिर व सत्यपीर मंदिर का भी महत्व है। कमरपुकुर वही ऐतिहासिक गांव है जहां प्रसिद्ध संत श्री रामकृष्ण परमहंस का जन्म हुआ। गांव में श्री रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित श्री रामकृष्ण मठ है, जहां श्री रामकृष्ण जी का एक मंदिर है। परिसर में अन्य मंदिर भी देखने को मिलते हैं, जिनमें रघुवीर मंदिर काफी प्रसिद्ध है। रासलीला उत्सव यहाँ का विशेष त्योहार है। इस अवसर पर पूरे गांव में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ की पवित्रता और यहाँ के पूजनीय स्थलों के दर्शन करने आइए, यहाँ के आध्यात्म को समझने आइए। कमरपुकुर में आपका स्वागत है। तो ये थी आज की हमारी संस्कृति यात्रा। आशा है आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को लेकर आपके रिव्यूज हमारे लिए वैल्यूएबल हैं। अगर आपके पास भी अपने गांव, एरिया या फोक ट्रेडिशन से जुड़ी कोई वाइटल इन्फॉर्मेशन है तो उसे हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। हमारा ईमेल आईडी है
sanskriti.ignca@gmail.com। आपसे फिर होगी मुलाकात सनसद टीवी पर अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय संस्कृति यात्रा के अगले एपिसोड में। और जाते जाते देखिए हाल ही में हुए कुछ सांस्कृतिक आयोजनों की झलकियां। नमस्कार। 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर IGNCA में नारी संवाद प्रकल्प के अंतर्गत एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। यह प्रदर्शनी भारतीय संविधान की 15 महिला शिल्पियों के योगदान पर केंद्रित थी। प्रदर्शनी का नाम था नींव। इसका शुभारंभ केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। संविधान को भारत की सभ्यता की अभिव्यक्ति बताते हुए केंद्रीय संस्कृति मंत्री ने मौलिक अधिकारों, समानता और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने में संविधान की क्रांतिकारी भूमिका पर प्रकाश डाला। संविधान के निर्माण के पीछे क्या भाव था, क्या सोच था, इसको लेकर के यदि जब तक हम नहीं जुटेंगे तब तक हम संविधान की आत्मा के साथ में अपनी आत्मा का मिलन नहीं करा पाएंगे। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम गायन के साथ हुई। कार्यक्रम में उपस्थित संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल ने अपने संबोधन में संविधान की यात्रा का वर्णन किया। भारत के संविधान ने न केवल अपनी शुचिता मेंटेन की, पर ये भी मेंटेन किया कि ये वैसा व्यवस्था है, ये ऐसा ग्रंथ है जिसके मूल सिद्धांतों को कोई तोड़ नहीं सकता। इस अवसर पर IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी ने कहा, ऐसी 15 महिलाएं जिन्होंने हमारी संविधान सभा में शिरकत की, समय समय पर भाग लिया, महत्वपूर्ण सूचनाएं दी। संविधान सभा की पूरी यात्रा की प्रदर्शनी है कि ये प्रदर्शनी एक साथ अभी भारत में IGNCA के 10 रीजनल सेंटर्स पर लगाई गई है और लगभग इसी समय उन सभी प्रदर्शनियों का उद्घाटन हो रहा है। इस अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर डॉक्टर अलका चावला और कलाकोश प्रभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुधीर लाल समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। संविधान दिवस के अवसर पर IGNCA के विभिन्न क्षेत्रीय केंद्रों में भी नींव प्रदर्शनी का आयोजन हुआ। IGNCA के क्षेत्रीय केंद्र गुवाहाटी ने असम स्टेट म्यूजियम के साथ मिलकर नींव प्रदर्शनी लगाई। इसका उद्घाटन प्रोफेसर शीला बोरा ने किया। वहीं क्षेत्रीय केंद्र गोवा ने भी रविंद्र भवन सांकली के साथ मिलकर इस अवसर पर एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया। प्रदर्शनी का उद्घाटन पद्मिनी फाउंडेशन के अध्यक्ष सुलक्षणा सावंत ने किया। क्षेत्रीय केंद्र पुदुचेरी ने भी संविधान दिवस पर नींव प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। डॉक्टर L अन्नपूर्णा ने डॉक्टर नेताजी सुभाष और थिरु S अरियापुथिरी के साथ मिलकर नींव एग्जीबिशन का उद्घाटन किया। क्षेत्रीय केंद्र जम्मू कश्मीर ने भी नींव प्रदर्शनी आयोजित की। प्रदर्शनी का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में संस्कृति विभाग के प्रधान सचिव IFS ब्रिजमोहन शर्मा ने किया। क्षेत्रीय केंद्र रांची ने भी YBN यूनिवर्सिटी में नींव भारतीय संविधान की महिला शिल्पी विषय पर प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर सत्यदेव पोद्दार ने बताया कि महिलाओं का सम्मान करने वाला समाज ही सांस्कृतिक रूप से समृद्ध होता है। क्षेत्रीय केंद्र वाराणसी में भी नींव प्रदर्शनी के शुभारंभ अवसर पर विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर RP पाठक और अध्यक्ष प्रोफेसर CP उपाध्याय उपस्थित रहे। क्षेत्रीय केंद्र वडोदरा ने भी संविधान दिवस पर नींव संविधान की महिलाएं प्रदर्शनी का आयोजन किया। कार्यक्रम में हंसा मेहता की भूमिका पर विशेष व्याख्यान भी दिया गया और कार्यक्रम में उनके ऐतिहासिक संदेश का ऑडियो क्लिप सुनाया गया। इसके साथ ही क्षेत्रीय केंद्र बेंगलुरु ने भी भारतीय विश्व संस्कृति संस्थान के सहयोग से नींव प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसका उद्घाटन बेंगलुरु में NGMA की निदेशक प्रियंका मैरी फ्रांसिस ने किया। वहीं क्षेत्रीय केंद्र त्रिशूर ने भी सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के निदेशक प्रोफेसर के सैन द्वारा नींव प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। क्षेत्रीय केंद्र तिरुपति में भी नींव प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन सत्र में नेशनल संस्कृति यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर GSR कृष्णामूर्ति समेत कई गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे।